Children, let us study more on chromosomes and chromosomal theory of inheritance, how these chromosomes help in inheritance. Okay, as it was discussed that chromosomes help in inheritance of certain factors. So later it was discovered as these factors are genes. That means as chromosomes, as they are inherited, chromosomes are inherited, along with that genes are also inherited. Okay, along with that genes which are responsible for particular trait are also inherited. So this was called as chromosome movement. This was called as chromosome movement. And what is chromosome? Chromosome means colored bodies, colored organs. Somes means organs, the colored bodies. So after the discovery of the microscope, as these are the microscopic structures, earlier only the cell division was studied, because this cell division, the meiosis and the mitosis, can be read and with normal microscopes. But with the advancement in the microscopes also, formation of the microscopes, with the technology used by microscopes, more clear study on cell cycle was formed, and which you have read in class 11. Although so we do not go into detail on the cell cycle. So on the cell cycle it was decided that these chromosomes are present. These chromosomes are helping in they have certain genes which are present on them. Because of their certain factors are there which help in the formation of visibility of certain traits. So we go to further chromosome movement in the 1992. Then Walter Sutton and Theodore Boveri, Sutton and Boveri, noted the behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes. Behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes, means the chromosomes they transferred to the next generation. Along with that genes also went with them parallelly. ठीक है, the function they went parallel to each other together. ठीक है, chromosome as well as genes occur in pair. What was the Sutton and Boveri this found findings? That chromosomes as well as genes they occur in pair. Two alleles of a gene pair are located on homologous side on homologous chromosome. Homologous chromosomes, they are having the similar, they are loci is similar. So homologous site means at the same position. If one allele of a gene is present here, thus the next pair, one of the pair will be present on the same site in the homologous chromosome. These are homologous chromosomes. Okay, and the homologous sites are also there. So two alleles of a gene pair. अगर हम R और R की बात करते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, दो एलील है, एक जीन का दो एलील है, तो टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर, एक पेयर का जो दो एलील है, दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस साइट्स, यहाँ इसका भी यहीं पर प्रेजेंट है, इसका भी यहीं पर प्रेजेंट है. सो इट वाज डिसाइडेड कि अगर यहाँ पर क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर्स, कभी भी क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम डबल हेलिकल होता है, डीएनए इज डबल हेलिकल, उसी तरह से क्रोमोसोम्स भी, जैसे हम कभी भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं कर सकते. क्रोमोसोम्स ऑलवेज ऑकर इन दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज देयर. लाइकवाइज हमने इससे पहले वाले ये में भी बताया था, कुछ क्लास में बताया था, दैट दे ऑकर इन पेयर. इधर एक सेट होगा, इधर एक नंबर इधर होगा, एक नंबर उधर होगा. सो इन दिस वे द क्रोमोसोम्स का जो कंसेप्ट है ना, वो आया. क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. ठीक है. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. You have already read the difference between mitosis and meiosis.
Mitosis is the equational division and meiosis is the reductional division. Reduction in the number of the chromosome. Reduction in the number of the chromosomes. ठीक है, half the number of the chromosome. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवर गैमेट्स, खासकर मियोसिस कहाँ होता है? इन द गैमेट फॉर्मेशन, इन द जर्म सेल फॉर्मेशन. इट इज़ द ग्रोथ वन. जैसे हम लोग मियोसिस के बारे में जानते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. फर्स्ट इंटरफेज जो होता है, रेस्टिंग फेज जो होता है, वो G1 होता है, सिंथेटिक फेज होता है, और G2 फेज होता है. G1 फेज में क्रोमैटिन मटेरियल अपना जमा हो रहा है, वो थिकन हो रहा है. सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है? रिप्लिकेशन ऑफ द DNA हो रहा है. व्हेन आई विल डिस्कस मोर ऑन द सेल डिविजन, because if I deal with the cell division here, then the most important things will be left behind, so I will not go into that. S phase में क्या हो रहा है कि DNA रेप्लिकेट हो रहा है. ठीक है, देखो यहाँ सिंगल क्रोमोजोम तुमको दिखता है, यहाँ पर ऐसा सिंगल क्रोमोजोम दिखता है, बट इन G2 फेज पहुँचते पहुँचते यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ क्रोमोजोम दिख रहा है. यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पर जो ये इतना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है ना, अभी ये मियोसाइट्स है, इस पर मियोसिस होने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंटली इसको समझो, ये मियोसाइट्स है. जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, तो उस पर जो हो रहा है मियोसाइट्स, दीज आर द मियोसाइट्स. इट विल हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम. ठीक है, और ये 2C है. क्रोमोजोमल कंटेंट जो है वो 2C है. ठीक है, 2C. मगर इस एक एक क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, ये जो होल सेट है इट इज़ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंटेंट है ना, इट विल हैव कंप्लीट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. उसके पास हर एक चीज़ 2 होगा, 2 सेट में होगा. इस होल सेल के पास में, इस जर्म सेल के पास, ये जो जर्म सेल होने वाला है, मदर सेल जो है, इसके पास हर चीज़ 2 नंबर में होगा. 2 सेट्स ऑफ जीन्स रहेगा. वॉट एवर जीन्स विल बी प्रेजेंट, इट विल हैव 2 सेट्स ऑफ जीन्स. ठीक है, लेकिन क्रोमोजोम्स 2 ही रहेगा. क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या हो जा रहा है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स तो है, 2n नंबर ऑफ सेट तो है, मगर क्रोमोजोमल कंटेंट क्या हो जा रहा है? क्योंकि ये सिस्टर क्रोमैटिड में चेंज हो गया है, इट विल बी 2n and 4C. यहाँ पर ग्रोथ होके, ग्रोथ फेज है ना, तो 4 क्रोमैटिड्स में ये चेंज हो गया. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ऑल्दो द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर देयर हियर, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन सेट ऑफ जीन्स विल बी सेम. सेट ऑफ जीन्स सेम रहेगा, वो 2n नंबर ही रहेगा, वो इंक्रीज़ नहीं कर जाएगा. जैसे यहाँ 4C हो गया है, वहाँ पर सेट ऑफ जीन्स इंक्रीज़ नहीं करके वो 2n ही रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है? सिंपली यहाँ से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, ईच विल हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, हाफ द सेट ऑफ द क्रोमोजोम. तो ये यहाँ से वो हैप्लॉइड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो है मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, एनाफेज स्टेज जो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है? बाइवेलेंट फॉर्म होता है. दैट यू आर नोइंग, बाइवेलेंट फॉर्म होता है. तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पोल पर, इस 1 पोल पर, जैसे हम कलर मेंशन है, येलो के साथ रेड है, ऑरेंज के साथ ग्रीन है, तो 1 पोल के साथ जो है ना, वो अपना अलग सेग्रीगेट हो जाएगा. सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोजोम टेक प्लेस. वो 1 पोल के साथ जो जा रहा है, दिस होल पोल, एक पोल का जो क्रोमोजोम्स है वो एक सेल में चला जाएगा, और दूसरा जो है वो दूसरे सेल में चला जाएगा. ठीक है, तो ये हैप्लॉइड नंबर. अब यहाँ पर क्या हो गया है? 1n और 2C हो गया है, ये हैप्लॉइड हो जाएगा. इसके बाद जो सेल बनेगा ना, ये बन जाएगा 1n. अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बन गया है 1n और 2C हो गया. ठीक है, इट इज़ 1n and 2C. 2 क्रोमोजोम्स है, उसमें 1 सेट ऑफ चला गया है. एक सेट इधर चला गया, एक सेट उधर चला गया. इस तरह से देयर आर द होमोलोगस क्रोमोजोम्स. जैसे डिवीजन होने वाला रहता है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स बगल बगल में आके लग जाते हैं. जैसे यहाँ पर हमने बताया होमोलोगस क्रोमोजोम्स बगल बगल में आके
लग जाते हैं, बाइवेलेंट जो बन के वहाँ पर खड़े रह जाते हैं, एकदम बगल बगल आ जाते हैं, तो मतलब इनका क्रोमोसोमल जीन सेट जो है वो सेम है, और वो ये एक पोल में है, ये दूसरे पोल में, इस तरह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। दीज आर ऑल्सो होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये एक सेल में इधर चला जाएगा, एक डॉटर सेल में ये सेट चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में ये वाला चला जाएगा। अब मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये एक सेल, दिस इज वन सेल हैज़ फॉर्म और ये दूसरा सेल फॉर्म किया है। अब ये इसमें मियोसिस 2 एनाफेज में क्या होगा, फिर से क्या होगा, वहाँ पर और रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोसिस। मियोसिस 2 का जो डिवीजन टाइप है वो माइटोसिस के जैसा होता है। तो इसमें और कुछ होगा नहीं, ये सिंपली ये 2 सेल में इसका कंटेंट डिवाइड हो जाएगा। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, इसके पास आधा सेट चला जाएगा, इसके पास आधा, जो ऑलरेडी आधा हो के ही है, लेकिन ये इसमें ऐसा दिखता है मगर ये आधा आधा है, अलग अलग है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये इसमें हैप्लॉइड है, इसमें हैप्लॉइड है, ऑल्दो ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट है मगर ये हैप्लॉइड ही है, हैप्लॉइड हाफ द नंबर ऑफ, ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया है, ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये हो गया है। अब जो जर्म सेल आएगा, यहाँ एक मियोसाइट विल गिव राइज टू 4 जर्म सेल्स हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड देखो लिंकेज, जो एक पोल, ये बताने का इसमें कारण क्या है कि एक पोल पर जो क्रोमोसोमल सेट था ना, वही क्रोमोसोमल सेट गया है। ये बताया गया है कि द क्रोमोसोम्स आर गोइंग इन अ सेट, एक साथ वो जा रहे हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो एक साथ जाते हैं। इसके बाद से और नया कंसेप्ट आया, जैसे येलो और रेड एक साथ गए, ऑरेंज और ग्रीन एक साथ गए, इस तरह से। और येलो और रेड शुरू से एक साथ थे, लास्ट तक भी एक साथ, वो अलग अलग नहीं हुए, एक ही साथ वो गए। लेकिन उसके बाद और भी कंसेप्ट आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, विच आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो।